Yes. Good evening, students. Today I would be starting Unit 3, that is Working Capital Management. Earlier we have done Introduction to Financial Management, Capital Structure, Capital Budgeting we have done, Leverages we have done, okay, then Cost of Equity, Cost of Debt, Weighted Average Capital, all these things we have already discussed. And I am leaving it up to the students to solve few questions which are there in the material as well as in the books. So if you find any problems, so during the course of the lecture, maybe today or maybe in the next class, please ask, please raise the question. So today we will be starting our new topic, that is working capital management. It is in our unit 3. So let us start. So when we hear the word working capital, what comes to our mind? Why the working capital is required for any business firm, for any organization? See, there are various sources from which the business or the firm has to source the fund. Now, estimating of or estimation of working capital required is completed. Then the next step is financing of working capital. Once you have estimated how much working capital is required, then the next thing is that from where to source it. So a statement of capital working capital gives clear picture about the components. So what are the components? The components are like raw materials, work in process, finished goods and receivables. Receivables मतलब आपका बिल्स रिसीवेबल कितना है, बिल्स रिसीवेबल से कितना आपका डेटर्स पार्ट हो गया, एंड required investment in these components of working capital. So financing of current assets is the responsibility of the finance manager, who may require spending a lot of time for raising finance. So working capital should be financed by suitable and optimal mix of short-term finance and long-term finance. Okay, so in this chapter we would be studying basically short-term finance as well as the long-term finance. Let us see sources of working capital. Now, sources of short-term funds have to be used exclusively for meaning of working capital requirements only and not for financing fixed asset. आप जब पहले आप ये डिसाइड कर लिए कि कितना हमको चाहिए, कितना बिजनेस में रिक्वायरमेंट है शॉर्ट टर्म फंड का और लॉन्ग टर्म फंड का, तो अब आपके पास सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है कि ये हमने एस्टिमेट तो कर लिया, लेकिन अब उस एस्टिमेशन को कहाँ से पूरा करें, कहाँ से हम जुगाड़ करेंगे अपना बिजनेस को चलाने के लिए शॉर्ट टर्म फंड्स और लॉन्ग टर्म फंड्स को। लेकिन एक बात और है फिर कि शॉर्ट टर्म फंड्स का जो आप जुगाड़ कर रहे हैं उसका एक्सक्लूसिव पर्पस होना चाहिए, उस फंड को कहाँ यूटिलाइज करना है, फॉर शॉर्ट टर्म एसेट्स, ठीक है जी, या वर्किंग, या ऐसा कह लें कि वर्किंग कैपिटल के लिए। So there are various sources of short-term financing. Again, I am telling you that this working capital chapter is very, very much important from examination point of view. In exam, they may ask you write short notes on trade credits, commercial papers, all these things they will ask, and they will definitely ask. This is very important. Or for 10 marks, they may ask you the what are the sources of short-term financing. So let us see. The various sources of short-term financing are trade credit. So what is trade credit? Trade credit refers to the credit extended by the supplier. इसको मैं एक कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको समझाता हूँ। जब आप कहीं से माल खरीदते हैं, अपना आपका बिजनेस है, रॉ मटेरियल खरीदते हैं आप, तो रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो आप मान लीजिए जहां से खरीद रहे हैं तो आपको कैश में खरीदते हैं और क्रेडिट में खरीदते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ टाटा स्टील। आपको क्या लगता है कि टाटा स्टील जितना माल खरीदता है रॉ मटेरियल, क्या सारा सारा का सारा कैश में खरीदता है या तुरंत पेमेंट करके खरीदता है? नहीं, बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। बिजनेस में मैक्सिमम काम जो है कारोबार में क्या होता है, क्रेडिट से होता है।
तो ट्रेड क्रेडिट का बेसिक मतलब ये हुआ कि जो आपका क्रेडिटर है, जहां से आपने माल खरीदा है, गुड्स खरीदा है, रॉ मटेरियल्स खरीदा है, उसको आपने खरीद लिया, खरीदने के बाद उसको आप गोडाउन तक ले गए, वहां से फिर अपना आप वर्क इन प्रोसेस में ले गए फैक्ट्री तक, फैक्ट्री में फिर वो प्रोसेस हो रहा है, वहां से फिर वो फिनिश्ड गुड्स बनेगा, फिनिश्ड गुड्स होने के बाद फिर जाएगा वो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के पास जाएगा, अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, वहां से जाने के बाद तब जो अल्टीमेट उसका कंज्यूमर है या जो यूजर है उसके पास वो मटेरियल आपका फिनिश प्रोडक्ट पहुंचेगा। तो ये सब प्रोसेस, और तब जाकर के जब आप बेचिएगा तब वहां से आपको कैश आएगा। तो ये जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है, इसमें क्रेडिट पीरियड इन्वॉल्व है। तो वहां से कलेक्शन में जितना आपको समय लगेगा, कम से कम कोशिश होना चाहिए कि आपको उतना क्रेडिट पीरियड जरूर मिले अपने सप्लायर से, तभी आपका ये जो सप्लाई चेन है, ये जो वर्किंग कैपिटल का जो जो साइकिल है, तभी ये अच्छे से काम करेगा। तो इसका मतलब यही हुआ, ट्रेड क्रेडिट रेफर्स टू द क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय द सप्लायर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज टू हिज और हर कस्टमर्स। तो जो रॉ मटेरियल बेच रहे हैं, जो क्रेडिटर है, देखिए जो रॉ मटेरियल, जिससे हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं वो हमारा क्रेडिटर है, और जिसको हम माल बेच रहे हैं वो हमारा डेटर हो गया। ठीक है जी, वो हमारा डेटर हो गया। फिर हम अपना माल किसको बेच रहे हैं? जो अपना फिनिश प्रोडक्ट है, जो हमारा यूजर है उसको बेच रहे हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमने कुछ माल खरीदा, उसमें कुछ हमने वैल्यू एडिशन किया, पूरा फिनिश प्रोडक्ट नहीं बनाया, थोड़ा सा हमने वैल्यू एडिशन किया और उसको फिर हमने मार्केट में रीसेल कर दिया या एक्सपोर्ट कर दिया। तो हम तो उसको, और फिर वो पार्टी क्या करेगा, उसको फिर से प्रोसेस करेगा और तब जाकर के कोई फिनिश प्रोडक्ट करेगा, बनाएगा। तो बेसिकली क्या है, ट्रेड क्रेडिट refers to the credit extended by the supplier of goods or services to his or customer in the normal course of business. Trade credit occupies very important position in short-term financing due to the competition. Almost all the traders and manufacturers are required to extend credit facility, without which there is no possibility of staying back in the business. तो देख लीजिए ट्रेड क्रेडिट पॉलिसी का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, उसमें भी क्रेडिट में ट्रांजेक्शन होता है, एंड विदाउट विच देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेइंग बैक इन द बिजनेस। नाउ ट्रेड क्रेडिट इज अ स्पॉन्टेनियस सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो ये जो क्रेडिट मिला है ना आपको, आपने माल खरीदा है, सामान गुड्स आपने खरीदा है और सर्विस, और ये जो क्रेडिट मिला है ये आपका एक सोर्स ऑफ फाइनेंस हुआ। ऑल्दो इमीडिएट फाइनेंस इज नॉट इन्वॉल्विंग, इमीडिएट आउटफ्लो ऑफ द कैश इज नॉट इन्वॉल्विंग, आप तुरंत पैसा तो नहीं दे रहे हैं, क्रेडिट में आप ले रहे हैं, लेकिन ये क्रेडिट भी एक फाइनेंस हुआ। कोई आपको ऐसा बोलता है कि आप जो है ना 1.5 महीने में पेमेंट कर दो भाई, आज ले जाओ माल उठा करके और आप जो है 45 दिन में पेमेंट कर दो, और कोई सेम मटेरियल आपको दे रहा है, बोलता है आप 2 महीने में कर दो, तो आप किससे लेना प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली आप 60 दिन में जो आपको बोलता है कि 60 दिन के बाद आप पेमेंट कर देना, वहां से लेना आप प्रेफर करोगे, क्योंकि आपको एक लंबा ड्यूरेशन मिल गया, और इस ड्यूरेशन का आपको इंटरेस्ट भी नहीं देना है। उसके बियॉन्ड अगर आप जाते हैं, सी ऑल दी थिंग्स आर ऑलरेडी मेंशन इन योर ट्रेड एग्रीमेंट, इन योर बिजनेस एग्रीमेंट। उस पार्टी के साथ पहले से ही अग्रीड रहेगा क्या आपका टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो ये जो क्रेडिट मिला है ना मुझे, ये क्रेडिट भी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है। In order to get this source of finance, the buyer should have acceptable and dependable credit worthiness and reputation in the market. लेकिन एक चीज और है कि आप तो क्रेडिट पे ले रहे हैं लेकिन लेके भाग नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए आपका क्रेडिट वर्दीनेस भी देखा जाएगा कि भाई आप जो है इतना दिन में बोले हैं कि पेमेंट कर देंगे, तो आप पेमेंट कर देते हैं। ऐसा नहीं कि ले गए और 1 साल तक भूल गए पेमेंट, आपको आपसे वसूली करने के लिए केस करना पड़ रहा है, या कुछ और कोई कुछ और हथकंडा अपनाना पड़ रहा है पैसा लेने के लिए। तो ऐसा आपका नहीं होना चाहिए। क्रेडिट वर्दीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आपको क्रेडिट पीरियड मिलेगा। ठीक है, रेपुटेशन इन द मार्केट। ट्रेड क्रेडिट जनरली एक्सटेंडेड इन द फॉर्मेट ओपन अकाउंट बिल ऑफ एक्सचेंज। ये जो रिसीवेबल्स है उसी को बिल ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। ओपन अकाउंट इज द फॉर्म ऑफ ट्रेड क्रेडिट वेयर supplier sends goods to the buyer for payment to be received in future as per the terms of the sales invoice. As such,
trade credit constitute a very important source of finance. It represents 25% to 50% of the total short term source of finance of working. आप बैंक से उठा रहे हैं पैसा शॉर्ट टर्म के लिए, बिजनेस के लिए, लेकिन बहुत सारा ऐसा भी है रॉ मटेरियल जो आपको खरीदना बहुत जरूरी है आपको फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, और वो रॉ मटेरियल आपको नहीं मिल रहा है क्रेडिट में, तो आपको क्या करना होगा, इमीडिएट पेमेंट करना होगा, कैश में लेना होगा। लेकिन जो मेजर पोर्शन ऑफ द रॉ मटेरियल है दैट शुड बी फाइनेंस्ड ऑन क्रेडिट, so that is called trade credit. I hope this concept is clear, and trade credit is very much very much important from examination point of view and knowledge point of view, or as a financial management student it is very much required to be known. Now let us see what are the advantages of trade credit. The advantages of trade credits are the main advantages are easily available when compared with other sources of finance. It is very much easily available. Flexibility and another benefit as credit increases with the growth of the firm sales. आपका सेल्स जैसे जैसे बढ़ता है आप दूसरे लोगों का भी आपके फर्म के ऊपर विश्वास होने लग जाता है और आप क्रेडिट वर्दीनेस बनाए रखते हैं, तो इससे क्या होता है लोग आपको ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट देते हैं. Informality, as we have already seen in the, it is an automatic source of finance. Now accruals. So what do we mean by accruals? देखिए accrued expenses are those expenses which the company owes to the other persons or organized. Accrued का मतलब ये हुआ कि खर्च हो चुका है पर्टिकुलर हेड में, लेकिन पेमेंट आपने नहीं किया है. कोई आपके बदले काम कर दिया है लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया है, तो दैट इज कॉल्ड accrued. और आपके केस में अगर कुछ इनकम के केस में कहा जाए तो वो इनकम जो हमने अर्न कर लिया है but in actual cash we have not received. This is what the accruals concept says. So accrued expenses are those expenses which the company owes to the other persons or the organizations but not yet due and not yet paid the amount. In other words, accruals represent a liability that a firm has to pay for the services or goods which it has already received. आपने सर्विसेज और गुड्स ऑलरेडी रिसीव कर लिया है लेकिन आप जो है सो उसका पैसा नहीं दिए हैं. इट इज स्पॉन्टेनियस एंड इंटरेस्ट फ्री सोर्सेज ऑफ फाइनेंस लाइक सैलरीज, वेजेस, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. मेजर कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ एक्रूअल्स. आपने एम्प्लॉय से काम करवा लिया 2 महीना, आपने पैसा नहीं दिया, बोला कि भाई तीसरे महीना दे देंगे आपको, तो ये भी तो आपके लिए एक सोर्स ऑफ फाइनेंस ही हो गया ना. 2 महीने आपका काम हो गया. द अमाउंट्स ऑफ सैलरीज एंड वेजेस हैव ओड बट नॉट येट पेड. तो बेसिकली यही है कि एक्रूअल्स का मतलब हुआ कि गुड्स एंड सर्विसेज आपने रिसीव कर लिया, पैसा नहीं दिया. एम्प्लॉय का सैलरी आपने ड्यू जो है वो दिया नहीं. ठीक है जी, तो यही हुआ, आपको एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है. नेक्स्ट है डेफर्ड इनकम. लेट अस सी व्हाट इज डेफर्ड इनकम. थर्ड नंबर, deferred incomes are incomes received in advance by the firm for supply of goods or services in future. आपने पहले से एक तो था यहाँ पर कि हमने काम कर लिया, हमने गुड्स एंड सर्विसेज जो है रिसीव कर लिया, बिना पैसे का उधारी में ले लिया, तो वो सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया. एक दूसरा है कॉन्सेप्ट कि आपने पैसा पहले रिसीव कर लिया एडवांस में, लेकिन आपने एक्चुअल में माल सप्लाई नहीं किया है. These incomes received increases the firm's liquidity. आपने पैसा जैसे ही रिसीव कर लिया, आपके पास पैसे तो आ गए, लेकिन एक्चुअल में आपके यहाँ से तो माल गया नहीं, तो आपके पास तो पैसा आ गया ना, तो उससे क्या हो गया, आपका जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है वो माने वर्किंग कैपिटल आपका बढ़ गया. These payments are not showed as revenue till the supply of goods or services, but showed in the balance sheet as income received in advance. तो यही आपका डेफर्ड इनकम है. लेट अस सी कमर्शियल पेपर्स. ये कमर्शियल पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. ये आप जो है सो ट्रेड क्रेडिट जरूर पढ़ लीजिएगा और कमर्शियल पेपर तो छोड़िएगा नहीं, इसको जरूर 3-4 बार पढ़ लीजिएगा कि व्हाट इज कमर्शियल पेपर्स. नाउ कमर्शियल पेपर represents a short-term unsecured promissory note issued by firms that have a fairly high credit standing or rating, credit rating. ये बेसिकली क्या है, एक
प्रोमिसरी नोट है, किसी को आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि ऑन सच एंड सच डेट आई विल बी पेइंग यू दिस मच ऑफ अमाउंट. So it was first introduced in USA and it was an important money market instrument. तो commercial paper क्या है, पहला लिखिएगा, it is an important money market instrument. It was first introduced in the USA and commercial paper it represents a short term unsecured promissory note. इतना लिख दीजिएगा ना, आपको 5 मार्क्स आ जाएगा पक्का. ठीक है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस सीपी. सीपी स्टैंड फॉर कमर्शियल पेपर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ Wagul working group on money market. Commercial paper is a source of short term finance. Features of commercial paper देखते हैं क्या है. The maturity period of commercial paper ranges from 15 days to 365 days. It is sold at a discount from its face value and redeemed at its face value. इसको redeem किया जाता है face value पे और इसको बेचा जाता है discount पे. 10 रुपए है तो 9 रुपए पे बेचा जाएगा और रिडीम किया जाएगा 10 रुपए पे. रिटर्न ऑन कमर्शियल पेपर इज द डिफरेंस बिटवीन पार वैल्यू एंड रिडीम. आप देखिए क्या है, रिडीम कर रहे हैं, इसको 10 रुपए का है कमर्शियल पेपर, तो 10 रुपए में आप रिडीम कर रहे हैं, लेकिन जब बेचा जा रहा है तो डिस्काउंट में बेचा जा रहा है 9 रुपए में. तो ये जो 1 रुपया का डिफरेंस है, दैट इज द प्रॉफिट, दैट इज द रिटर्न ऑन कमर्शियल पेपर. इट मे बी सोल्ड डायरेक्टली टू इन्वेस्टर्स और इनडायरेक्टली डीलर्स. There is no developed secondary market for CP. अब eligibility criteria क्या है, issuing of commercial paper. Commercial paper is unsecured promissory note. The issue of CP is being regulated by the Reserve Bank of India. इसका regulatory body कौन है, Reserve Bank of India है. RBI has laid down the following conditions. Number one is the tangible net worth of the company as per latest audited balance sheet should not be less than 4 crores. जो कंपनी का जो नेट वर्थ है ना, वो 4 करोड़ से नीचे नहीं होना चाहिए लेटेस्ट बैलेंस ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से. दूसरा है, कंपनी शुड हैव सैंक्शन एज ए फंड बेस्ड लिमिट्स और द ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स. Company can issue CP amounting to 75% of the permitted bank limits. ठीक है. The minimum size of each commercial paper is 5 lakhs or multiples thereof. The size of any single issue should be not less than 1 crore. Advantages देख लेते हैं. It is an alternative source of commercial paper. Again, I am repeating that it is very important, as well as the trade credit is also very much important. So please do not leave these two topics. And proves to be helpful during the period of tight bank credit. देखिए बैंक से क्रेडिट नहीं मिल रहा है, टाइट क्रेडिट है, मैंने टाइट बैंक क्रेडिट है, उस टाइम पर ये हेल्पफुल इंस्ट्रूमेंट है. इट इज चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस. डिसएडवांटेज क्या है, इट इज अवेलेबल ओनली फॉर लार्ज एंड फाइनेंशियली साउंड कंपनीज एंड इट कैनॉट बी रिडीम बिफोर द मैच्योरिटी डेट. अब पांचवा है जी पब्लिक डिपॉजिट्स. अब आप पब्लिक से भी डिपॉजिट ले सकते हैं. बहुत सारा कंपनी का देखिएगा पब्लिक डिपॉजिट, जो बैंक में जो इंटरेस्ट रेट मिलता है ना, उससे ज्यादा आपको नॉर्मल जो कंपनी डिपॉजिट लेती है ना, उस पर आपको ज्यादा रिटर्न देती है कंपनी. तो वहां से भी आप सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है फाइनेंस कर सकते हैं आप वर्किंग कैपिटल के लिए. सो पब्लिक डिपॉजिट्स और टर्म डिपॉजिट्स आर द नेचर ऑफ अनसिक्योर्ड डिपॉजिट. ये सबसे पहले तो सिक्योर्ड नहीं है, क्या है, अनसिक्योर्ड है. Have been solicited by the firms, both large and small, from general public maturity, primarily for the purpose of financing their working capital requirements. ये regulation आप खुद से पढ़ लीजिएगा. What are the regulation? Let me read out. Fixed deposits accepted by companies are governed by the Companies Amendment Act Rules 1978. A firm cannot issue public deposits for more than 25% of its share capital. ये सब regulations है, ये सब आपको जानना होगा. The company that had raised funds by way of issue of public deposits is required to set aside a deposit or investment by 30th April each year. Next slide, page number 84. Yeah, advantages. Advantages of public deposits can be studied from two different views. Company point of view से है, no restrictive covenants are involved.
सिंपल प्रोसीड्योर इन्वॉल्व इन इशूइंग, नो सिक्योरिटी इज ऑफर्ड अगेंस्ट पब्लिक डिपॉजिट्स, और ये चीपर भी है। अब इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी होता है, हायर इंटरेस्ट रेट मिलता है। बहुत से लोग जो है ना कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी का जो निकलता है ना एफडी, श्रीराम से निकालता है या अडानी कंपनी का निकला है, बहुत सारा कंपनी का निकालता है फिक्स डिपॉजिट, महिंद्रा का निकलता है, उसमें आप डायरेक्टली डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन ये आपको रिस्की है, कंपनी अगर डूब गया कुछ हुआ तो पैसा भी गया, कोई गारंटी वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आपको मैंने देखना होगा। अब इसका डिसएडवांटेजेस भी है कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स कैन बी रेज, फंड्स अवेलेबल ओनली फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। और इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ये टैक्सेबल है, इनकम रिसीव्ड ऑन दिस इज टैक्सेबल। रिस्क सिंस देयर इज नो सिक्योरिटी अगेंस्ट दिस पब्लिक डिपॉजिट, तो ये रिस्की है। कंपनी का क्या रेटिंग है, कंपनी के अंदर में क्या चल रहा है, हम लोगों को जानकारी नहीं है, ऊपर से कोई देखने वाला भी नहीं है, कंपनी डूब गया पैसा गया, तो अपने रिस्क पर आप को देखना होगा। नेक्स्ट है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। अब आप देखिए बहुत सारी कंपनी है, मान लीजिए जैसे रिलायंस है, रिलायंस क्या करेगी, if they see that it may turn out to be really lucrative for investing in Tata Steel, then they may go for investing in Tata Steel corporate deposit. Similarly, if Tata Steel finds that Jindal Steel, or let's say let's say L&T, L&T may give a very good return for 1 year or 2 year or 3 years time horizon, then they may invest few amounts into the corporate also. This is called the corporate deposits. तो corporate deposits है। अब इसमें क्या होता है, call deposit, deposits are expected to be payable on call. In other words, whenever it's repayment is demanded on just 1 day notice, but in actual practice the lender has to wait for at least 2 to 3 days. ठीक है, और इसमें कम से कम 12% का इंटरेस्ट मिलता है। तो एक तो इंटरेस्ट मिल गया अच्छा, लेकिन एक चीज इसमें क्या है, कॉल डिपॉजिट, मतलब जैसे ही मांगेगा वो जो डिपॉजिटर पैसा, तो उसको तुरंत आपको देना होगा, लेकिन नॉर्मली 2 से 3 दिन लग जाता है। अब एक है, एक कॉल डिपॉजिट है, टाइप है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स आर देयर। ठीक है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, 3 मंथ्स डिपॉजिट। 3 मंथ्स डिपॉजिट में क्या है कि 3 महीने तक के लिए आपका पैसा ब्लॉक रहेगा, और उसमें 14% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम। एक है 6 मंथ डिपॉजिट, उसमें क्या है, जनरली द इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स आर मेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। These types of deposits are usually given to 8 category borrowers only, and they carry an interest rate of around 16%. तो देखिए 6 महीना में 16%, कहाँ मिल रहा है जी, कहीं नहीं मिल रहा है। कोई भी एफडी में जाइए, 5 साल का एफडी में मिल रहा है 7.25% मैक्सिमम रिटर्न नॉर्मल आदमी के लिए, अनलेस एंड अंटिल यू आर सीनियर सिटीजन यू विल गेट मोर। लेकिन 5 साल में एफडी कीजिए तो मिलता है कितना, 7%, 7.5%, 7.25%। लेकिन देख लीजिए यहाँ पे ये 12% से स्टार्ट ही होता है, कितना अच्छा ल्यूक्रेटिव है। तो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट में क्या है, एक कंपनी दूसरा कंपनी में करती है डिपॉजिट, और इसमें 3 तरह का होता है, कॉल डिपॉजिट, 3 मंथ डिपॉजिट, 6 मंथ डिपॉजिट। कॉल डिपॉजिट में क्या है कि जब कॉल करेगी कंपनी की पैसा चाहिए भाई मुझे, तो आपको पैसा वापस करना होगा। इसमें कम से कम 12% का पर एनम का इंटरेस्ट रहता है। 3 मंथ डिपॉजिट में क्या है जी, 14% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हाँ, और 3 महीने के लिए, 3 मंथ के लिए पैसा ब्लॉक रहेगा। 6 मंथ डिपॉजिट में क्या है, अब ए कैटेगरी बोरोवर, ए कैटेगरी देखिए, ये कैटेगरी जो होता है ना, कंपनी का रेटिंग होता है, रेटिंग होता है। जैसे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ना, यूनिवर्सिटी का भी रेटिंग होता है, रैंकिंग होता है, वैसे ही कंपनी का भी रेटिंग एंड रैंकिंग होता है। क्रिसिल, इकरा, आईसीआरए, ये सब रेटिंग एजेंसी है। मूडी, these are the agency which rate the company, and based on those credit worthiness and rating, they get the loan, or they I mean उसका वो मार्केट में वो रेपुटेशन होता है। अब फीचर्स ऑफ आईसीडीज क्या है, देयर इज नो लीगल रिक्वायरमेंट्स व्हिच मेक्स आईसीडी ट्रांजैक्शन वेरी कन्वीनियंट। देन इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स आर गिवन एंड टेकन इन सीक्रेसी। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, सीक्रेसी में है, चुपचाप अंदर अंदर हो रहा है ये काम, पता भी नहीं चल रहा किसी को, और अंदर अंदर हो जा रहा है। इंटर कॉर्पोरेट अभी क्या है, 6 महीने के लिए दिया मान लीजिए किसी ने, और अपना बैलेंस शीट तो बनेगा 1 साल के बाद,
लेकिन ये बीच में ये चीज हो गया तो बैलेंस शीट में भी नहीं दिखा और काम भी हो गया, अपना रिटर्न भी आ गया। या किसी ने 3 मंथ्स के लिए किया तो 3 मंथ्स में देखिए सीक्रेसी हो गया और बस पैसा भी कमा लिया। तो ये सब चीज भी होता है। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स आर गिवन बेस्ड ऑन बोरोअर्स फाइनेंशियल साउंड, बट इन प्रैक्टिस लेंडर्स लेंड मनी बेस्ड ऑन पर्सनल कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट है कमर्शियल बैंक। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, कहां कहां से फाइनेंस आप जुगाड़ कर सकते हैं। आपने प्रोजेक्शन तो बना लिया, लेकिन अब जुगाड़ कहां से होगा, सोर्सेज। तो commercial banks are the major sources of working capital finance to industries and commerce. Granting loan to business is one of the primary functions. Getting bank loan is not an easy task, since the lending bank office may ask number of questions about the prospective borrower's financial position and its plans and future. लेकिन मैं अभी आपको एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा। ये तो है कि गेटिंग लोन इज नॉट एन इजी टास्क, ये तो लिखा हुआ है और बात सही भी है। हम और आप जाएंगे लोन लेने, छोटा मोटा बिजनेस वाले तो 50 तरह का क्वेश्चन होगा, गारंटी मांगेगा, वो एसेट्स का वो बोलेगा मॉर्गेज करो। लेकिन यहीं पर हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने पैसा लिया और चुकाया भी नहीं और देश से भी भाग गए। वो नाम आपको पता है कौन कौन है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो क्या है, बैंक उनके साथ एक अलग ही उनको एक ट्रीटमेंट देती है, लेकिन जो जेन्युइन लोग हैं वो लोग मार खा जाते हैं। नाउ फॉर्म्स ऑफ बैंक फाइनेंस। बैंक्स प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेलर्ड मेड लोन्स। क्या क्या लोन्स है, लोन है, ओवरड्राफ्ट है, कैश क्रेडिट है, परचेज या डिस्काउंटिंग बिल्स है, एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। अगेन आई एम टेलिंग यू, लेटर ऑफ क्रेडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एलसी एग्जाम में आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय एलसी या लेटर ऑफ क्रेडिट। ये जितना भी टर्मिनोलॉजी है ना, मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूं और इसको आप प्लीज आप छोड़िएगा नहीं। एकदम मेरा गुजारिश है कि पूरी तरह से इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाइएगा, आएगा ही आएगा थ्योरेटिकल पोर्शन में लिखने के लिए। तो लोन्स, लोन इज एन एडवांस इन लंप सम गिवन टू बोरोवर अगेंस्ट सम सिक्योरिटी। लोन कैसे दिया जाता है कि जी कुछ सिक्योरिटी के बिना पर आपको लोन दिया जाएगा। लोन अमाउंट इज पेड टू द एप्लीकेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश और बाय क्रेडिट to his her account. In practice, the loan amount is paid to the customer by crediting his her account. Interest will be charged on the entire loan amount from the date of loan sanction. Borrower can repay the loan either in lump sum or in installment depending upon the conditions. Number 2 is overdraft. बैंक से कैसे कैसे किस किस फॉर्मेट में फाइनेंस होता है, वही वही हम लोग पढ़ रहे हैं। अब ओवरड्राफ्ट क्या है, देखिए ओवरड्राफ्ट का मतलब हुआ कि आपका जो बैंक में जितना पैसा है, मान लीजिए 1 लाख है, लेकिन आपको जरूरत हो गया 1.5 लाख का, तो बैंक बोलेगा ठीक है भैया, हम आपका 1.5 लाख का ओनर कर देंगे, आपको 1.5 लाख तक का हम क्रेडिट दे देंगे। दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। मतलब जितना आपका है ड्राफ्ट बनाने का जितना कैपेसिटी है, उससे ज्यादा का आपको बैंक ने सैंक्शन कर दिया। So overdraft facility is an agreement between the borrower and the banker, where the borrower is allowed to withdraw funds in excess of the balance in his or current accounts up to a certain limit during a specified period. जितना आपका लिमिट है उससे ज्यादा आपको in excess of balance. It is flexible from the borrower's point of view, because the borrower can withdraw and repay the cash whenever he or she wants within the given situations. Interest is charged on daily overdrawn balances. ठीक है, ये सब एज ए फाइनेंस स्टूडेंट आपको पूरी तरह से जानना चाहिए कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है, कैश क्रेडिट क्या होता है। अब देखते हैं कैश क्रेडिट क्या है। इट इज द मोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस इन इंडिया. A cash credit facility is an arrangement where a bank permits a borrower to withdraw money up to a sanctioned credit limit against tangible security or guarantees. आपका कुछ बिजनेस है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, प्लांट एंड मशीनरी है आपके पास में, फैक्ट्री है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास मान लीजिए कि लैंड है, तो बैंक में जाकर के ये सब चीज दिखाइएगा कि मेरे पास ये है, तो बैंक क्या करेगा, आपको कैश क्रेडिट देगा। उसको सीसी लिमिट भी बोलते हैं। सीसी लिमिट आपने सुना होगा, अगर फाइनेंस का स्टूडेंट है तो नहीं सुना है तो सुन लीजिए। तो सीसी लिमिट भी आ सकता है, या कैश क्रेडिट लिमिट क्या है जी। इट इज द मोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस इन इंडिया. कैश क्रेडिट फैसिलिटी इज एन अरेंजमेंट वेयर अ बैंक permits a borrower
to withdraw money up to a sanctioned credit limit against tangible security or guarantees. Borrower does not require to withdraw the total sanctioned credit at a time. Rather, he can withdraw according to his or her requirements, and he can also repay the surplus cash in his cash credit account. Interest is chargeable on actually used amount and there is no commitment charge. Cash credit is a flexible source of working capital from borrower's point of view. ये सब कॉन्सेप्ट एकदम जान लीजिए, आएगा ही एग्जाम में, एकदम छप चुका है, सोचिए क्वेश्चन आएगा ही, अगर नहीं आया होगा लास्ट ईयर तो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस या वर्किंग कैपिटल, एकदम आएगा और आपको पूरा छाप के आ जाना है आंसर, दिमाग में जो छपा हुआ है वही वहां पे कर देना है। 15 नंबर 20 नंबर 20 मार्क्स 10 मार्क्स कुछ भी नहीं छूटेगा, एकदम आ जाएगा। कैश क्रेडिट हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया, लोन हो गया, यही तो बैंक देती है। फिर नेक्स्ट क्या है जी, परचेजिंग और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। सो बिल्स रिसीवेबल, देखिए बिल्स जब पढ़ते हैं हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज, उसमें दो तरह का चीज होता है, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल, ठीक है। अब बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल में क्या डिफरेंस है कि जब आप ऐसा समझ लीजिए, when you are selling the goods to the buyer, to the debtor, okay, on credit you are raising a bill, okay, so that is the bills receivable for you, and whatever the bills receivable is for you, the same will be bills payable for the opponent party. Now let us assume you have purchased raw material from creditor, okay, so at that point of time, and you have bought the goods or raw materials on credit, you are not paying immediately. So in that case, what will your creditor do? He will raise a bill on you, and that bill will be called bills payable. In short, it is also called receivables and payables. Okay? So, bills receivable arises out of sales transactions where the seller of goods draws the bill on the purchaser. The bill may be documentary. Okay, what I was discussing is purchasing or discounting of bills. Now, bills receivable arises out of sales transactions where the seller of goods draws the bill on the purchaser. The bill may be a documentary or clean bill. Once the bill is accepted by the purchaser, then the drawer or the seller of the bill can go to the bank for discounted. ठीक है जी, बिल आ गया आपके पास में, आप बैंक में जाइए, अब बिल का अमाउंट का पेमेंट वहां जाकर के डिस्काउंट करा के ले लीजिए। मान लीजिए 10 रुपया का है फॉर एग्जाम्पल, तो 10 रुपया का बिल को आप 9 रुपया में ले लीजिए, आपको इमीडिएट कैश मिल गया, बजाय इसके कि आप 2 महीना वेट कीजिएगा, आपको तुरंत कैश तो आ गया। सो दिस इज व्हाट द फंक्शनरी ऑफ bill discounting. The credit worthiness of the drawer is satisfactory, then bank purchases और discount बिल को क्या करेगा, बैंक खरीद लेगा, और बैंक क्या करेगा, आपको पैसा दे देगा, लेकिन पूरा 10 रुपया का है तो 10 रुपया में नहीं देगा आपको, 2 रुपया उसमें से काट लेगा, तो 2 रुपया वो बैंक का हो गया,
ठीक है जी, और आपको 8 रुपया तुरंत मिल गया कैश, तो आपको भी फायदा हो गया। तो ये इस तरह से ये काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 88। Yeah, this letter of credit is very, very, very much important. Please mark my word. Letter of credit, you will definitely get question from letter of credit. You will definitely get question from cash credit, overdraft, and the first point that I discussed was trade credit. ये चार चीज जो है ना, इससे क्वेश्चन चारों में से एक या दो में से आना ही आना है। ये मेरा गेस है, और नहीं आएगा तो आप डिस्कस कीजिएगा एग्जाम के बाद। तो लेट अस सी व्हाट लेटर ऑफ क्रेडिट इज। इसको बहुत अच्छे से समझिए, एकदम आएगा एग्जाम में। नाउ देयर आर टू नॉन फंड बेस्ड सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटी। ठीक है जी। अब देखिए, बैंक गारंटी एंड लेटर ऑफ क्रेडिट, आप ऐसा समझिए, मैं आपको एक मैंने लेमैन्स की भाषा में समझाता हूं। आपको मान लीजिए बाहर से, लेट्स से ऑस्ट्रेलिया से गुड्स मंगवाना है, रॉ मटेरियल परचेज करना है। अब ऑस्ट्रेलिया में सपोज कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है, या जर्मनी से मंगवाना है तो जर्मनी में यूरो चलता है। इंडिया में क्या चलता है जी? इंडियन करेंसी, इंडियन रुपीज चलता है। अब क्या है, हमारा बैंक वहां पर तो नहीं है, वहां पर तो HDFC बैंक नहीं होगा जर्मनी में, वहां का बैंकर अलग है। ऐसा तो है नहीं कि आपके विश्वास पर आप जाएंगे माल खरीदने, आप बहुत बड़े अच्छे आदमी हैं, हाँ, तो आपको दे देगा माल कि भाई ले जाओ उधारी में। आपको खरीदना है करोड़ ऑफ रुपीज का माल खरीदना है, रॉ मटेरियल, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको देख करके दे देगा, या आपका बैलेंस शीट देख करके दे देगा। तो टू कंट्रीज आर इन्वॉल्व, टू not only countries, but you can say two continents are involved, in fact. Two rules and regulations side. So in that case, what will happen? Your banker, let's say your banker is State Bank of India, and in Germany, I don't know the names of the bank, but let's say German bank. Okay, let's say German bank is there. So what they would do, what this bank, State Bank of India will do, the State Bank of India will issue one letter of credit. ठीक है। अब वो आप लेटर ऑफ क्रेडिट ले करके आप जाइए जर्मनी में, वहां पे जो आपका है उसको दीजिए। अब वो आदमी क्या करेगा, वो बंदा आपका अपोनेंट पार्टी, उस लेटर ऑफ क्रेडिट को लेकर के अपना बैंक में जाएगा, बैंक ऑफ जर्मन, वहां जाके दिखाएगा कि इंडिया का बैंक है, सरकारी बैंक है, और इसने ये लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया है। तब हुआ बात ऑथेंटिक, तब आपको वहां से माल रिलीज हो जाएगा। स्टेट बैंक क्या करेगा, उतना अमाउंट बैंक ऑफ जर्मनी में जर्मनी में ट्रांसफर कर देगा। सो दिस इज व्हाट द लेटर ऑफ क्रेडिट इज, बट इन एक्चुअल यू आर नॉट पेइंग टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया immediately, but based on your previous record, based on your eligibility, based on your other merits of the company, the state bank has thought that you are a very good person, you are a very your business is very, but let's see the loopholes. The Nirav Modi, what he did, and one more person that who was owning that Gitanjali showroom, gold jewelry showroom, Mukul Choksi and Nirav Modi. They took the letter of credit from Punjab National Bank of rupees 5,000 crore. The scam was around 5,000 crore. So they have taken based on the relationship that they were maintaining with the officers of the bank, and what the bankers did, they might have also earned some money or got some bribe, and they issued the letter of credit to whom? To these persons, Mehul Choksi and Nirav Modi. These persons were involved. Okay, they were into the gold or diamond, business, and they have taken this much of amount. Those monies were of whom? Of general public, general depositors of country, and I don't know what they did of that money. तो पैसा तो लेके चला गया पंजाब नेशनल बैंक का और यूको बैंक का और कौन सा बैंक का क्या किया। तो दिस इज व्हाट, बट इफ वी
people go to bank and ask for issuing one letter of credit, they will simply deny it. They will not issue it. Prior to issuing this, they will ask for guarantees. So there are two non-fund based sources of working capital, namely letter of credit and bank guarantees. Now these are also known as quasi-credit facilities. Due to non-payment of amount immediately, a letter of credit is a written document. So what is a letter of credit? A letter of credit is a written document issued by the buyer's banker, that is called BB, at the request of the buyers in favor of the seller. समझ गए? तो मेहुल चौकसी का बैंक था पीएनबी, उसने और नीरव मोदी का, और उसने बैंक से लिखवा लिया एक लेटर, ठीक है, गारंटी का लेटर, क्रेडिट का लेटर, और सेलर्स के नाम में लिखवा लिया. वेयर द बायर्स बैंकर्स gives an undertaking to the seller. अब ये क्या करता है? अंडरटेक देता है that the bank pay the obligation of its customer up to a specified amount. कि भाई ये जो खरीद रहा है माल, उसका पैसा हम देंगे. तो बैंक जब आप यहाँ इन्वॉल्व हो गया, तो उसमें किसको ट्रस्ट नहीं होगा? बैंक खुद लिख के दे रहा है कि हम आपको ऑब्लिगेशन जो भी रहेगा उसको हम सेटिस्फाई करेंगे. इफ द कस्टमर फेल्स टू पे द वैल्यू ऑफ द गुड्स परचेज, यही है. मतलब बैंक लिख के देगा लेटर, आप अगर खरीदते हैं तो किसके फेवर में? सेलर के फेवर में, कि आप कस्टमर फेल होता है तो बैंक पे कर देगा. तो यही है लेटर ऑफ क्रेडिट. और ये आपको एग्जाम में पक्का आएगा, नहीं आया होगा पिछले साल तो. इट हेल्प्स टू बैंक्स कस्टमर टू ऑब्टेन क्रेडिट फ्रॉम द सेलर which is possibly by the assurance of the payment. Thereby, it allows the supplier to extend credit since the risk of non-payment is transferred to the BB. BB मतलब buyer's banker. Letter of credit facility is available from bank only for the companies that are financially sound, and bank charges the customer for providing this facility. देखिए, ये बोला है ना फाइनेंशियली साउंड. आपका अगर कंपनी फाइनेंशियली साउंड भी है तो भी उतना इजीली अवेलेबल नहीं है ये सब चीज. लेकिन देख लीजिए यहाँ पर, जो जो कंपनी का फाइनेंशियली साउंड नहीं था, फाइनेंशियली अनसाउंड कंपनी था, इवन दे वर एबल टू टेक द लेटर ऑफ क्रेडिट, एंड यू नो द नेम बेटर. ओके, अब देखिए, अब ये हो गया हमारा फाइनेंसिंग ऑफ शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल, ये हमने कंप्लीट कर लिया. तो फाइनेंसिंग ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल क्या क्या था? बैंक था, बैंक में क्या था? ओवरड्राफ्ट था, कैश क्रेडिट था, लोन था. उसके अलावा क्या था? हमारा ट्रेड क्रेडिट था, फिर बिल डिस्काउंटिंग था, फिर लेटर ऑफ क्रेडिट हमने पढ़ा. ठीक है जी. उसके अलावा और क्या पढ़ा हमने? कैश क्रेडिट पढ़ा. ठीक है. तो ये सब चीज आपको जब भी आएगा एग्जाम में तुरंत लिख लीजिए. इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट है, कमर्शियल बैंक है, तो इसको ध्यान में रखिए और पूरा याद रखिए. अब हम लोग पढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक इज फाइनेंसिंग ऑफ परमानेंट और लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल. देखिए, परमानेंट और लॉन्ग टर्म का जहां ये वर्ड आता है ना, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए माइंड में कि इसका मतलब हुआ फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड कुछ है. सो परमानेंट वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल इज दैट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड टू मेंटेन द मिनिमम सेल्स. As we have read, the net working capital means a part of current assets that should be financed by long-term sources of finance. The following are the sources of long-term working capital और long-term sources of finance. देखिए क्या है, अब ये कहां से सोर्स करेंगे इसको, लॉन्ग टर्म कैपिटल को, लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल को? इंटरनल फाइनेंसिंग. तो इंटरनल फाइनेंसिंग सोर्सेज क्या है? इंटरनल source of financing, as we have classified source of financing internal and external, which is based on the generation of finance source. A new company can raise the required long-term funds from external sources, but an undertaking which is well established can generate funds
not only from external but also from internal. Internal sources of finance is available only for firms that are existing and well established. So the internal sources of finance are retained earnings, plowing back of profits and depreciation charges. अब देखिए रिटेन अर्निंग क्या होता है? रिटेन अर्निंग मतलब समझ जाइए, मोटा मोटी इसका मतलब हुआ प्रॉफिट, नंबर वन। दूसरा है प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। दूसरा है कि प्लॉइंग बैक मतलब प्रॉफिट जो है उसको यूज करना, तो वहां से यूज कर रहे हैं आप। तीसरा है डेप्रिसिएशन चार्ज। देखिए डेप्रिसिएशन जब चार्ज करते हैं तो डेप्रिसिएशन एक्चुअली में क्या है कि एक नोशनल कॉस्ट है, मतलब एक्चुअल में आपका पैसा डेप्रिसिएशन में स्पेंड हो नहीं रहा है, लेकिन आप प्रॉफिट कम कर रहे हैं उतना से। तो प्रॉफिट कम कर रहे हैं कैसे? उसको एक्सपेंस में दिखा रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपका प्रॉफिट कम हो रहा है। तो ये दो तरीका है, डेप्रिसिएशन चार्ज एंड रिटेन अर्निंग और प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। So let us see what is retained earning. Retained earnings is an important source of internal financing of well-established company. Retained earnings are the portion of earnings available to equity shareholders, which are plowed back in the company. So what are retained earnings? Retained earnings are basically that portion of the profits which are available to the equity shareholders. In other words, a part of the earnings available to equity shareholders that are retained for future investment. कुछ ऐसा पार्ट को रख दिया जाता है जिसको फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। Accumulation of profits by firm for financing developing programs. Hence, the process of accumulating company profits regularly and their utilization in the business is known as retained earnings or plowing back of profits or internal financing. In this source of companies generally retained or plowed back 20 से 70% ऑफ अर्निंग तक को कंपनी इस्तेमाल कर सकती है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए। पेज नंबर 89। Now, retained earnings may be used for expansion of programs of company, replacement of obsolete assets. Obsolete assets मतलब क्या हुआ? ऑब्सोलेट एसेट मतलब हो गया जिसको यूज कर करके घिस घिस करके आप जो है तो पुराना कर दिए हैं और उसके उससे उतना प्रोडक्टिविटी नहीं होता है या खराब हो गया हुआ एसेट, दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट ऑफ ऑब्सोलेट एसेट्स। मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लान्स, तो रिटेन अर्निंग को आप ये सब काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सपेंशन ऑफ कंपनी, रिप्लेसमेंट ऑफ ऑब्सोलेट एसेट, मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस और डिवेंचर, प्रेफरेंसेस और डिवेंचर्स। Now, factors influencing retained earnings: retained capacity of a company, types of dividend policy, taxation policy of the government, profitable investment opportunities, other factors. So देखते हैं एक करके retained earnings. Now plowing back of profits arise only when the company have sufficient profits earnings. देखिए plowing back मतलब क्या होता है? सबसे पहले plowing back मतलब क्या हो गया? खेती करके, खेती किया हुआ जो चीज है प्लाउ बैक मतलब खेती करके उसको फसल उगाते हैं, फसल को फिर काटना, ठीक है जी। इसको हो गया प्लॉइंग बैक। प्लॉइंग बैक का सिंपल मीनिंग यही हुआ, खेती किया, खेती करके फसल उगाया, फसल को खेत में छोड़ देंगे तो सड़ जाएगा, तो सड़ना नहीं है, उसको काट लेना। सो दैट इज व्हाट प्लॉइंग बैक। सो यू आर यूजिंग दैट प्लॉइंग दैट मनी प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स कब होगा? जब आपका अर्निंग अच्छा रहेगा तभी प्रॉफिट्स होगा। तो उसी प्रॉफिट्स को साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन गिवन बाय Keynes, who is a famous economist. So larger the earnings, larger the plowing back of profit. ये कॉन्सेप्ट कौन दिया है? एक साइकोलॉजिस्ट थे केन्स। लार्जर द अर्निंग्स, लार्जर द प्लॉइंग बैक। ये तो सिंपल बात है, जितना अर्निंग होगा उतना ही प्रॉफिट होगा। नाउ टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ अ फर्म। इन अदर वर्ड्स, a retained earning depends on the dividend policy adopted by the top management. अब देखिए डिविडेंड का पॉलिसी क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है प्लॉइंग बैक। With regards to the distribution of earnings, a company which intend to retain more earnings needs to follow conservative dividend policy. जिसको ज्यादा डिविडेंड ज्यादा जिसको अर्निंग चाहिए उसको क्या करना है? needs to follow conservative dividend policy. The retained earnings policy is also affected by the expectation of shareholders. Now let's see the next point, that is taxation policy of the government.
Earnings available to shareholders are the profit after taxes minus preference shareholders dividend. देखिए टैक्स किस पे लगता है आपको? अर्निंग्स अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स, अर्निंग्स अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स जो हम लोग पैट पढ़ते थे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये हमने पहले पढ़ा है ना कैपिटल स्ट्रक्चर सब चैप्टर में, फिर कैपिटल बजटिंग में जो पढ़ा है। तो पैट जो है आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डिविडेंड, व्हेन देयर इज हाई टैक्स rate, less profit after tax and less retained earnings and vice versa। तो जब ज्यादा टैक्स रेट रहता है तो लेस प्रॉफिट होता है, आफ्टर टैक्स लेस प्रॉफिट हो जाता है। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, a firm that has more profitable investment opportunities fails to retain profits for financing of that investment and vice versa। Now other factors, टॉप मैनेजमेंट एटीट्यूड एंड फिलॉसफी, देखिए सब कुछ डिपेंड करता है टॉप मैनेजमेंट का क्या एटीट्यूड है और क्या विजन, क्या मिशन एंड क्या फिलॉसफी है उसका बिजनेस का। ऐसा तो नहीं है कि सारा पैसा उठा करके अपने पॉकेट में डाल लेना है, तो वो सब ज्यादा दिन नहीं चलता है। दूसरा बात है कि आपका शेयर होल्डर के प्रति क्या रवैया है, आपका जो है सो आगे का विजन क्या है, अपना कंपनी को लेके क्या है, यानी कि अपना कंपनी को खुद से ही लूट लेने का है, ऐसा तो नहीं है। ऐसा ऐसा भी बहुत सारा है एग्जाम्पल, मैं वो एग्जाम्पल नहीं देना चाहूंगा, ऐसा ऐसा बहुत एग्जाम्पल है। नाउ कस्टम ऑफ द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का क्या कस्टम है, इकोनॉमिक एंड सोशल एनवायरमेंट ऑफ द कंट्री, प्रिवेलिंग इंडस्ट्री लाइफ साइकिल एक्सेट्रा। अब इंडस्ट्री लाइफ साइकिल देखिए, देखिए मैंने एग्जांपल दिया था, आज की डेट में कोई जो है सो रेडियो खरीदता है, कोई नहीं खरीदता है। रेडियो कहाँ गया मोबाइल में, तो रेडियो इंडस्ट्री कहाँ चला गया, ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन कहाँ चला गया, खत्म हो गया। तो इंडस्ट्री का वो भी देखना होगा आपको, साइकिल लाइफ साइकिल क्या है, मैच्योरिटी में है, स्टैग्नेंट हो गया है, सैचुरेटेड हो गया है, दीज आर द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट। So that has to be seen. One more thing is there, postman. Earlier postman used to come and used to deliver Antardeshi letter, postcard letter. So nowadays everybody does communication through mail, WhatsApp or courier. Post office very less in use. Hmm. Now let us see advantages of retained earning. So what are the advantages, merits to company? Now firm can raise funds easily since there are no obligations involved with the shareholders। अब देखिए फर्म के पास पैसा है, वो तो इजीली आपके पास पॉकेट में पैसा है, तो उसकी किसी से पूछने की क्या जरूरत है, तो यही बात कह रहा है। तो फर्म्स कैन रेज फंड्स इजीली since there are no obligations involved in shareholders। It is less costly when compared to other sources of long-term finance since it does not involve flotation cost, preference shares, debentures। It increases credit worthiness of the company because the retained earnings increases। अब देखिए कंपनी के पास रिटेन अर्निंग है, प्रॉफिट ज्यादा है, तो कंपनी का क्रेडिट वर्दीनेस भी बढ़ जाएगा, सबको लगेगा कंपनी का अच्छा प्रॉफिट बना रहा है तो ज्यादा क्रेडिट वर्दीनेस होगा। नो डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल, अब क्या है, बाहर से आप पैसा मंगाइएगा, किसी शेयर होल्डर्स को शेयर बेचिएगा, तो कंपनी का मान लीजिए बहुत शेयर खरीद लिया लोग, तो कंपनी का ओनरशिप भी डायल्यूशन हो जाएगा, कंट्रोलिंग मैनेजमेंट में भी डायल्यूशन हो जाएगा। लेकिन ये तो आपका अपना खुद का प्रॉफिट है, उसको आप यूज कर रहे हैं, तो वहां उसका भी खतरा नहीं है। इट हेल्प्स टू मेंटेन स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी इन द ईयर ऑफ लेस और नो प्रॉफिट्स। तो इट हेल्प्स टू मेंटेन स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है, पेज नंबर 90। It helps in improving efficiency by the use of retained earnings to replace the depletion and obsolescence of assets। It enables to redeem long-term liabilities such as debentures, long-term loans। Now let us see advantages of to the owners or shareholders। Earlier we were discussing advantages of marriage to company, but now we will be discussing to shareholders or owners। So what are they? It increases in the value of shares in the long run, stable dividend policy, improvement of efficiency, increase in the collateral value of shares since the value of share price increased and it is accepted by the lenders as collateral security। It enhances earnings, dividends। Now advantages to the society or nation. It increases the rate of capital formation which indirectly helps to promote economic development of the nation। It stimulates industrialization by internal financing। तो क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ा रहा है इंटरनल फाइनेंसिंग। अब इंटरनली फाइनेंस कर रहे हैं, कोई कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें आपका,
खुद का जो अर्निंग है, प्रॉफिट है, उसी पे आप काम कर रहे हैं, वहीं से आप सोर्स कर रहे हैं। तो ये लॉन्ग टर्म एसेट्स का हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म source of capital, permanent source of capital. It helps to increase profitability since it helps to increase productivity since retained earnings used for modernization, replacement of old machines and formulation of new companies, which help to utilize the scarcely available resources optimally. It improves the standard of living by providing employment, efficient use of scarce resources. Now let us see disadvantage. I will take 1 minute break, then I'll come back again.